Okay, today we are going to study some important characteristics of alternating currents. हमने पिछली क्लास में जो एक alternating current generator के बारे में पढ़ लिया, उससे हम कैसे एक alternating EMF प्रोड्यूस कर सकते हैं, and then when such a generator is connected across any electrical device, the current begins to flow through that device. The current that you get is a alternating current. Now उस current का हमने एक graphical study भी देखा था last time. Here again I am showing you some different graphs. Say these are all graphs plotted between current on y-axis and time on x-axis. So variety of graphs are visible. As I have shown 7 different graphs. You have to identify which of these graphs are representing an alternating current. आपको identify करना है. Try yourself. अपने आप से कोशिश करके देखो जरा and देखो जरा आंसर्स, आप अपने आंसर्स नोट करो and then I'll tell you कि what are the which of these figures are representing alternating currents and why they are alternating and why are they not alternating. चलिए ट्राई करिए अपने आप से पहले. So yes, so whatever you have thought of, let me just tell you the answers now. Here, first, second and third, these 3 figures are not alternating current. They are not alternating currents. Why they are not alternating, we'll just discuss. 4th, 5th, 6th and 7th, these are all alternating currents. Okay, but it is not that we are going to study the alternating current जो हमने इसी generator last time discuss किया था, उन सभी alternating currents का ये ग्राफ नहीं है. इसमें से सिर्फ आप देख रहे हैं जो 4th ग्राफ है, that was the graph we discussed for the alternating current or alternating EMF that we used to get with the help of that AC generator. लेकिन ये भी एक alternating currents के different forms हैं. Now first of all, ये graphs alternating currents नहीं है. That means ये first, second and third, they are direct currents. Okay, 4th, 5th, 6th and 7th, they are alternating currents. क्यों नहीं है ये alternating currents? ये alternating currents क्यों नहीं है? देखिए, इनमें आप देख रहे हैं कि negative cycles नहीं है, जबकि इन सब में negative cycles भी हैं. Now when you say that there are no negative cycles means कि for example first circuit में first graph में क्या हुआ, when I say that at t is equal to 0, current was 0, and as the current was switched on in whatever circuit this current is flowing, the current starts to grow, it starts increasing, and after a period of time it becomes constant. That means throughout it flows in only one direction. So after a period of small interval of time, we can see the current is almost constant also. So ये एक हम कह सकते हैं almost एक uniform DC है. यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर भी करंट एज इफ स्विच ऑन करने पर मैक्सिमाइज हुआ, मैक्सिमाइज होने के बाद मे बी स्विच ऑफ कर दिया गया, करंट डिके हुआ, 0 हो गया, एंड देन अगेन स्विच्ड ऑन, द करंट स्टार्टेड टू इंक्रीज एंड दिस इज अगेन इंक्रीजिंग इन द सेम डायरेक्शन. दैट मीन्स यहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं है, इट इज फ्लक्चुएटिंग, इट इज वैरिंग, मे बी इट इज पीरियोडिकली वैरिंग ऑल्सो, बट it is not changing its direction of current in the circuit. When the direction of current doesn't change, it flows only in one direction, it's called as direct current. So it is a direct current, but it is a varying type of direct current. It is a kind of uniform direct current. जैसे ये आपको cells and batteries से करंट मिलता है, वो ये करंट है. Okay? ये हम पढ़ते हैं इस तरह के करंट्स आपको, इस तरह की जो करंट्स हैं आपको एक फुल वेव या हाफ वेव रेक्टिफायर्स की हेल्प से मिल जाते हैं. So this is a kind of half wave rectified current. इसमें भी वही हो रहा है. For a period of time current flows in one direction and for a period of time the current remains switched off. Again it flows, but again it flows in the same direction. So it means again in these 3 figures the direction of current is not changing with time. Whereas here this is already this is a alternating current, क्योंकि इसमें कुछ period of time के लिए current एक direction में flow हुआ and it is also varying in nature. Then for the same period of time maybe वो current reverse हो गया. Reverse मतलब circuit में उल्टा flow करने लगा, opposite direction में flow करने लगा. So this is continuously repeatedly changing its magnitude as well as direction. So such type of alternating current is called as a sinusoidal. मैंने आपको पहले भी बताया था, sinusoidal alternating current, and this is our actually topic of discussion. इसी टाइप के alternating current को हम mainly इस chapter में discuss करने वाले हैं.
ये भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक लीनियर वेरिएशन है करंट का, करंट इंक्रीज हुआ लीनियरली एंड देन आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम सडनली उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया विद सेम मैग्नीट्यूड एंड अगेन स्टार्टेड टू डिक्रीज टू जीरो एंड अगेन इंक्रीज टू अपोजिट डायरेक्शन एंड सो ऑन। इसको हम एक सॉ टूथ ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। सॉ टूथ, सॉ का शेप दिख रहा है आपको, जो हेक्सा ब्लेड्स वगैरह होते हैं उसके टूथ देखे होंगे आपने, शेप्स इसी तरह से होते हैं। इट्स कॉल्ड एज अ सॉ टूथ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट है ना। एंड मे बी इस तरह के फिगर्स तो आपको शायद सबको पता ही होंगे, है ना। व्हेन यू हैव हार्ट पल्सेस वगैरह होती हैं तो उनकी बीट्स पे जब आपने ईसीजी ग्राफ्स वगैरह देखे होंगे उसमें कुछ इस तरह के ग्राफ्स मिलते हैं। इसमें भी क्योंकि मैंने नेगेटिव साइकिल्स दिखाए हैं सो दैट मींस इट इज अगेन अ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट है ना। इसमें एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक करंट की वैल्यू कुछ कांस्टेंट है। देखिए आई नॉट, ये कांस्टेंट करंट है ना। इट्स नॉट कि वो डीसी हो गया, ये कांस्टेंट करंट है इतने टाइम के लिए एंड देन फिर उतने ही टाइम के लिए एक रिवर्स करंट है, फिर वो कांस्टेंट, मतलब करंट हमेशा कांस्टेंट है, मे बी 5 एम्पियर है, बट 5 एम्पियर करंट कुछ देर के लिए एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, फिर 5 एम्पियर सडनली रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो मतलब इस तरह के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वगैरह में हम इस तरह की बातें करते हैं, जिसका डिजिटल टाइप ऑफ सिग्नल्स, जिसमें करंट की वैल्यूज एक मिनिमम वैल्यू है 0 और एक मैक्सिमम वैल्यू है मे बी से 5 ऑफ टाइम, कुछ भी हो सकता है वैल्यू, बट वो पीरियोडिकली अगर चेंज कर रहा है, मान लीजिए नेगेटिव हाफ साइकिल वाला नहीं होता, सिर्फ अपर हाफ ही होते तो हम उसको डीसी कहते, लेकिन वो रिपीटेडली अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो इट इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट। सो दीज आर जस्ट सम एग्जांपल्स। तो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इस करंट्स को डिस्कस करने का है, जिसकी इक्वेशन हमने पढ़ ली है। अगर इस तरह की करंट हमें एक सोर्स से मिल रही थी तो उसकी ईएमएफ की इक्वेशन हमने लिखी थी, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, and E naught is called as the maximum EMF, peak EMF. It was called as peak EMF, है ना। और उसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या देखी थी, E naught was NBA into omega, है ना। ये लास्ट हम लोगों ने डेरिवेशन में किया था। एंड सपोज इस तरह से इस तरह की सोर्स ऑफ ईएमएफ से जो हमें करंट मिलने वाली है वो ये करंट है। अगर ये करंट है तो इसकी इक्वेशन है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट विल बी कॉल्ड एज पीक करंट। तो ये करंट जो हम पढ़ने वाले हैं, इस करंट की इक्वेशन को जरा अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करें। इस करंट की, इस पर्टिकुलर करंट की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना चाहेंगे। लेट अस प्रोसीड। सो यू नो नाउ, आपने डीसी सर्किट्स पढ़े थे, उसमें आप एक सोर्स ऑफ ईएमएफ को दिखाते थे। दिस वाज द सिंबल, दिस वाज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वाज द नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज कॉल्ड एज ए सेल। इसका ईएमएफ हम कुछ लिखते थे ई, या एक बैटरी होती थी तो वी सेड उसमें सेल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता था, उसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना, उसको एक बैटरी कह देते थे। तो दीज वर सिंबल्स ऑफ डीसी सोर्सेस। बट हम किसी सर्किट में जब हम एक एसी सोर्स दिखाते हैं, सो दिस इज द सिंबल जनरली यूज्ड फॉर एसी सर्किट्स। सर्कल मार्क इनसाइड इट वी हैव शोन वन, मतलब एक एसी सिग्नल दिखा दिया हमने उसमें। So that type of symbol is used for representing AC sources. इसमें हम कोई पॉजिटिव नेगेटिव मार्क नहीं करते हैं because the direction of current keeps on changing. Now suppose ये सोर्स ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF है और इस सोर्स को हमने एक सर्किट में कनेक्ट किया, मे बी वो एक रेजिस्टेंस हो सकता है और भी एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में। तो उसमें एक करंट फ्लो करता है, सपोज दैट करंट इज I. So EMF की इक्वेशन हम लिख रहे हैं E is equals to E naught साइन ओमेगा टी। अब तक आप हम लोग ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख रहे थे, अब इसमें एक मैंने प्लस फाइव और ऐड किया। सिमिलरली अगर वो ईएमएफ है तो करंट की इक्वेशन भी ऐसी कुछ हो सकती है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना। ये प्लस 5 क्यों ऐड हो गया वो भी मैं आपको बताता हूं। सो दीज आर द टू इक्वेशंस, दिस इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड इसका आपने ग्राफ जो प्लॉट किया था वो कुछ इस टाइप से ग्राफ प्लॉट किया था। यहां पर मैं ईएमएफ या फिर करंट को प्लॉट करता हूं तो वो एक ऐसा साइन ग्राफ आपको मिला था। एक साइकिल जिसका टाइम t था, दिस इज हाफ साइकिल t/2 एंड लाइक दिस t/4 एंड दिस इज 3t/4 एंड लाइक दिस। दिस इज द पीक वैल्यू। ये या तो E नॉट है या फिर I नॉट है, जो भी, अगर ये करंट का ग्राफ है तो पीक I नॉट है, EMF का ग्राफ है तो वो वैल्यू E नॉट है। तो इस तरह का ग्राफ इन इक्वेशंस के लिए हमने ड्रॉ किया था, है ना। अब ये ग्राफ देखिए, ये तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, लेकिन अगर प्लस 5 है तो समटाइम्स ये ग्राफ शायद यहाँ ओरिजिन से 0 से स्टार्ट ना हो, तो वो 5 की वैल्यूज कुछ अलग अलग हो सकती है। वी विश टू नो, हम इसमें सारी टर्म्स, इसमें देखिए एक
नंबर, एक वैल्यू ई दिखाई पड़ रही है, ई नॉट दिखाई पड़ रहा है, ओमेगा एक क्वांटिटी दिखाई पड़ रही है, टी यू अंडरस्टैंड क्या है, फाई क्या है, ये ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, ये सारी चीजें जो इस इक्वेशन में नजर आ रही हैं हम इसको समझना चाहेंगे कि ये सब चीजें हैं क्या. दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग टू लर्न कि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना चाहते हैं. ओके, नाउ यू आर एक्चुअली फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. ऐसी इक्वेशन को आप पहले कहां देख चुके हैं? हम इस तरह की इक्वेशन वेव्स या साउंड के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना. याद करो, एसएचएम की इक्वेशन आप ऐसा लिखा करते थे, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा कुछ लिखते थे, है ना. ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है. एक पार्टिकल जब एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था तो उसकी इक्वेशन ऐसे लिखते थे. डोंट यू फाइंड कि ये इक्वेशन उसी के जैसे है ना. एज इफ इन प्लेस ऑफ ए इट इज ई नॉट, बाकी ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, यहां पर भी वही चीज है. तो यहां ये क्या चीज है? यहां पर जो ई नॉट है वो क्या है, ओमेगा टी क्या है, फाइव क्या है? ये तो एक पार्टिकल था जो ऑसिलेट कर रहा था, उसमें उसका एम्पलीट्यूड था. तो यहां ये सब चीजों को इससे कोरिलेट करें. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो लेट अस स्टार्ट विथ So as I said, you are familiar with this format of equation, and it was similar to an equation of simple harmonic motion. तो इसलिए आपको इनके जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनको उनकी मीनिंग भी इजीली समझ में आ जाएंगे. इन दिस इक्वेशन E or this I that represents the instantaneous value of the alternating EMF or alternating current. But what does it mean? Like I have plotted this graph, you can see that कि जो EMF है ना, या करंट है, वो टाइम के साथ, दिस इज टाइम एक्सेस, इस एक्सेस पर हमने टाइम प्लॉट किया, वो टाइम के साथ वैरी कर रहा है. तो वो टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है? समटाइम्स इट इज जीरो, sometimes it is at the maximum value, sometimes it may be half of that maximum value, 1/4 of that maximum value and so on. मतलब इसमें जो E की वैल्यू है वो टाइम के साथ बदल रही है. तो एट एनी मोमेंट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी टाइम t पर उसकी वैल्यू क्या है, दैट वैल्यू आई एम कॉलिंग एज E. तो दैट इज इंस्टेंटेनियस EMF और इंस्टेंटेनियस करंट, राइट. देन सिमिलरली यहां जो E नॉट या I नॉट दिख रहा है, उस इक्वेशन से कंपेयर करें SHM की, तो वहां पर वो एम्पलीट्यूड की जगह दिखाई पड़ रहा है. तो ये है भी एम्पलीट्यूड. दिस इज E नॉट और I नॉट इज द पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, या इवन यू कैन कॉल इट द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑल्टरनेटिंग EMF और ऑल्टरनेटिंग करंट. आप कह सकते हैं उसको ऑल्टरनेटिंग EMF का या ऑल्टरनेटिंग करंट का एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं. तो इट इज द पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग EMF और ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, तो ये EMF है तो वोल्ट्स में है, ये करंट है तो एम्पियर्स में होगा. सेम एज दिस, E नॉट एंड I नॉट विल बी इन वोल्ट्स एंड एम्पियर्स. Now next is कि what is this omega t plus phi in this equation? Sine of an angle होता है, तो ये एक एंगल जैसा दिख रहा है. बट हियर इन अ सर्किट चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है. करंट का डेफिनेटली किसी एंगल से कोई रिलेशनशिप तो हो नहीं सकता. सो व्हाट इज दिस एंगल एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग हियर? ये एक एंगल नहीं है, ये कुछ एंगल के टर्म्स में किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जा रहा है. दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द फेज ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग EMF और ऑल्टरनेटिंग करंट. कि ये देखिए आप पीरियोडिकली अपनी वैल्यूज को बदलता है. आफ्टर एवरी एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको हमने t लिखा हुआ है ना. अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ एंगल लिखूं, इसको मैं इसी चीज को एंगल के टर्म्स में लिख रहा था, तो इसको मैंने 2 पाई लिखा था, इट वाज पाई. मतलब आफ्टर एवरी 2 पाई रेडियंस ये वैल्यूज दोबारा रिपीट होने लगती हैं. जो चीज यहां 0 से लेकर 2 पाई रेडियंस के बीच में हुआ, फिर से 2 पाई टू 4 पाई रेडियंस के बीच में यही वैल्यूज रिपीट होने वाली है. तो हम उस एक्चुअली अगर आप जनरेटर का प्रिंसिपल देख रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर में आपने कहा था एक क्वाइल रोटेट करती थी, है ना. उस क्वाइल के रोटेशन का तो ठीक है एंगल से संबंध है, वो एक रोटेशन पूरा करता था, मतलब 360 डिग्री रोटेट कर गया, तो उसका तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियंस हुआ. बट उसी 2 पाई रेडियंस में ये EMF ऐसे वैरी करता था, उसकी वेरिएशंस ऐसी हो रही थी. तो उसके वेरिएशंस का हमने एक रोटेशन ऑफ क्वाइल के वेरिएशन को हमने कैपिटल T सेकेंड्स में लिखा, या उसी एक रोटेशन के एंगल को हमने 2 पाई रेडियंस कह दिया. तो आप ये कहिए कि T सेकेंड्स में EMF ऐसे वैरी हुआ, या ये कह दीजिए कि 2 पाई डिग्रीज के या 2 पाई रेडियंस के रोटेशन में ऐसा वेरिएशन हुआ. तो वो एंगल 2 पाई जो है वो एक्चुअली वो क्वाइल का था, लेकिन हमने यहां पर रेफरेंस के लिए उस 2 पाई को यहां पर ले लिया कि EMF अपना फेज एक साइकिल में, एक रोटेशन में कैसे वैरी कर रहा है. और एक रोटेशन का फेज हमने बता दिया कितना है, 2 पाई रेडियंस. ओके, सो ये जो उसका एंगल दिखाई पड़ रहा है, इसको मैं मान लीजिए कैपिटल फाई डिनोट कर दूं. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अगेन एन इंस्टेंटेनियस फेज. देख रहे हैं, अब ये T पर डिपेंडेंट है, मतलब
इस वक्त इसका फेज कितना है, इस वक्त इसका फेज कितना है, इस वक्त इसका फेज कितना है। अगर मान लीजिए जैसे कॉइल ने, मैंने जनरेटर को समझाते समय आपसे कहा था कि इनिशियली वी अज्यूम दैट प्लेन ऑफ द कॉइल वाज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट एरिया वेक्टर वाज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मतलब एंगल थीटा हमने 0 से स्टार्ट किया था। बट इट्स नॉट एसेंशियल कि वो कॉइल 0 डिग्री इनिशियल पोजीशन से ही रोटेट करना शुरू करे। इनिशियली एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ कोई एंगल ऑलरेडी फाई बना रहा था और फिर वहां से घूमना शुरू किया, तो हम उसलिए इक्वेशन में लिख रहे हैं इट बिकम्स ओमेगा टी प्लस फाइव। तो वो प्लस फाइव जो हमने लिखा है वो फाइव इज द इनिशियल एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर ऑफ दैट कॉइल। तो अगर वो इनिशियली फाइव एंगल के साथ शुरू करता है तो ईएमएफ की वैल्यू भी फिर, या करंट की वैल्यू भी फिर 0 से स्टार्ट नहीं होगी, वो भी किसी सर्टेन वैल्यू से स्टार्ट होगी, शायद मैक्सिमम से स्टार्ट हो, शायद उसके हाफ से स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है वो ग्राफ, है ना। वो एक साइकिल फिर वहीं जाके खत्म भी होगा, फिर जाकर अगर ये पीक से शुरू हुआ तो ये खत्म भी जाके फिर पीक पर होता, लाइक दैट। मतलब ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट्स के जो हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि हर वक्त वो मतलब E इज इक्वल्स टू 0 से ही स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है वो। तो वो किसी वक्त किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर किस स्टेट ऑफ वेरिएशन में है, उसका कौन सा स्टेट ऑफ वेरिएशन है, क्या वो पीक पर है, क्या वो पीक पर के हाफ पर है, क्या वो पॉजिटिव साइकिल में चल रहा है या क्या वो नेगेटिव साइकिल में चल रहा है। ये जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो ईएमएफ किस स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ किस स्टेट ऑफ वेरिएशन में है, उसको हम उसके फेज से बताते हैं। ठीक है, वंस आई नो द इंस्टैंटेनियस फेज, जिसमें इनिशियल फेज कितना था ये पता है हमें, तो हम उसका किसी एक वक्त के बाद ये पता कर सकते हैं कि वो किस फेज में है, किस स्टेट ऑफ वेरिएशन में है, मतलब वो ईएमएफ कहां पर पहुंचा है, पीक पर पहुंचा है, कितनी ऑसिलेशंस कर चुका है, ये सारे इंफॉर्मेशन हमें कौन दे देगा, फिर उसका फेज। तो फेज दैट इज व्हाई इज कॉल्ड एज द measure of its state of variation of the EMF और state of variation of the alternating current। तो उसको हम लोग रेडियंस में नापेंगे। ठीक है, बट मस्ट बी क्लियर, यू मस्ट नो दैट ये रेडियंस में नापने का मतलब ये नहीं कि ये कोई एंगल ही हो गया है, ये एंगल जैसा है इस एक्सप्रेशन में मैथमेटिकली वो एक एंगल जैसा ही है, उसकी यूनिट्स भी एंगल्स की है, बट यू मस्ट नो कि वो कोई यहां पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ या करंट के लिए वो कोई एंगल नहीं है, वो एक फेज रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने एंगल की मदद ली है। तो इसी में देखिए, अगर मैं स्मॉल टी को 0 पुट अप कर दूं तो ये वाला टर्म 0 हो जाता है, तो कैपिटल फाइव इज इक्वल्स टू इनिशियल फाइव, टी इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली क्या फेज था, इसलिए मैंने कहा इनिशियली वो ईएमएफ का फेज 0 ही होना चाहिए या करंट का फेज 0 ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर 0 था तो इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी थी, है, हो भी सकता है 0 फेज, लेकिन अगर 0 नहीं है तो वो कुछ भी हो सकता है। अब फेज जो है इनिशियली वो कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन प्लस π/2 रेडियन टू माइनस π/2 रेडियंस, इन दोनों के बीच में ये कुछ भी हो सकता है। मतलब योर इक्वेशन ऑफ करंट कैन बी I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/4 या ओमेगा टी प्लस π/6 या ओमेगा टी माइनस π/4 या माइनस π/6 या प्लस π/2 या माइनस π/2, मतलब उसकी फाई की वैल्यूज जो है वो प्लस π/2 से माइनस π/2 के बीच में कुछ भी हो सकती है। मतलब वो ईएमएफ 0 से शुरू हो सकता है, प्लस π/2 से शुरू हो सकता है, माइनस π/2 से, मतलब इनके बीच में वो ईएमएफ की वैल्यू या करंट की वैल्यू कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो विल से इनिशियल फेज इज 0, यहां से स्टार्ट होता है 0 पर आता है फिर मैक्सिमम ऐसा होता है तो विल से इनिशियल फेज इज प्लस π/2। इनिशियली वो माइनस I नॉट होता है, फिर 0 होता है, फिर प्लस I नॉट होता है, तो विल से इनिशियल फेज इज माइनस π/2। तो लाइक दैट इनिशियल फेज डिसाइड करेगा कि करंट 0 सेकेंड पर कितना है, ईएमएफ 0 सेकेंड पर कितना है। अब वो कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यूज यहां से यहां तक वैरी कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि कैपिटल फाइव जो है वो टाइम के साथ वैरी कर रहा है, टाइम के साथ घट रहा है, बढ़ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर टाइम के साथ फाइव चेंज हो रहा है तो एट व्हाट रेट दिस फाइव इज चेंजिंग, ये जो फाइव है पर सेकेंड कितना चेंज हो रहा है, एट व्हाट रेट इट इज चेंजिंग। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या बचेगा अपने पास, ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या बचेगा, ओमेगा, और ये प्लस फाइव तो कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, दैट मींस d5 अपॉन dt इज एक्चुअली ओमेगा। तो ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि द फेज ऑफ द ईएमएफ और द अल्टरनेटिंग करंट इज चेंजिंग, देन इट इज चेंजिंग एट व्हाट रेट, किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज इट्स फेज फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यू कैन कॉल इट एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इसलिए उसकी यूनिट्स क्या होंगी, देखिए, रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, सो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज of the alternating EMF और alternating current। और ये क्या है,
बिल्कुल देखिए, आप ये सब टर्म्स आप फेमिलियर हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। अगर इसका एक साइकिल टी सेकेंड्स में हुआ है, टी यूनिट्स ऑफ टाइम में हुआ, तो एक साइकिल का फेज 2 पाई था। तो 2 पाई फेज चेंजेस इन टाइम टी, तो पर सेकेंड कितना चेंज हुआ? 2 पाई/टी, है ना। याद करो, ओमेगा वी डिस्कस्ड जब हम जनरेटर का प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, तो वी सेड कि वो जो कॉइल था वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमता था, है ना। तो ओमेगा वाज ए कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट था। तो चाहे वो मैं आधे सेकंड आधे रेवोल्यूशन को लेकर निकालूं कि यहां से यहां तक कितना फेज चेंज हुआ डिवाइडेड बाई टी/2 कर दूं, या यहां से यहां तक कितना फेज चेंज हुआ डिवाइडेड बाई टी कर दूं, तो वो कांस्टेंट आने वाला है। तो हमने एक साइकिल के लिए लिखा कि 2 पाई इज द चेंज इन फेज इन वन साइकिल, उसका टाइम है टी, तो 2 पाई/टी। और अगर 1/t हम देखें, इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो L इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो हम देख रहे हैं ये एक साइकिल है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का, ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का एक साइकिल है, एंड दिस इज गोइंग टू रिपीट आफ्टर 2 पाई to 4, बिटवीन 2 पाई to 4 पाई ये फिर से रिपीट होगा, 4 पाई to 6 पाई ये फिर रिपीट होगा, मीन्स बिटवीन एवरी 2 पाई रेडियंस आप देखेंगे ये साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे कितने साइकिल्स एक सेकेंड में रिपीट हो रहे हैं? एक सेकेंड में ऐसे कितने साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज इट्स फ्रीक्वेंसी। एज आई टोल्ड यू इन द टॉपिक ऑफ जनरेटर्स, मैंने आपको बताया था हमारी कंट्री में इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है। इन अवर कंट्री दीज ऑल्टरनेटिंग करंट्स और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ्स दे आर प्रोड्यूस्ड एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, है ना। आप घर के अप्लायंसेस जो होते हैं उसमें देखिए लिखा हुआ मिलेगा कि उसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 to 60 हर्ट्ज के बीच में भी वो चेंज होने पर डैमेज नहीं होते। तो बट स्टैंडर्डाइज हमारी कंट्री का जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज का है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो इस इक्वेशन के अंदर है। नाउ व्हेनेवर यू सी दिस इक्वेशन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या है। हाँ, मैं अगर एक ऐसी इक्वेशन लिखता हूं कि करंट इज I इज इक्वल्स टू 5 sin 100 पाई टी प्लस पाई/4 एम्पियर। हाँ, now you from this equation you should be able to understand कि इस alternating current में जो 5 एम्पियर है वो पीक करंट है, मैक्सिमम करंट है। ओमेगा, the value of omega is 100 pi radians per second. Initial phase of this current is pi/4, like that, है ना। इस इक्वेशन को देखकर अब आपको उस करंट की कई जानकारियां मिलती हैं। इसमें मैं किसी वैल्यू ऑफ टी को दे दूं कि इस वक्त टी की वैल्यू 5 सेकेंड्स है, 5 सेकेंड्स में बताइए करंट कितना है, तो टी की वैल्यू 5 रख लीजिए। तो 500 पाई प्लस पाई/4, तो यू गेट द वैल्यू ऑफ 5। उस वक्त करंट की कितनी वैल्यू है। तो लाइक दैट दिस इंफॉर्मेशन व्हेन यू नो दीज टर्मिनोलॉजीज, हम इस इक्वेशन से इस करंट के बारे में कई जानकारियां अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो सम आर विजिबल इन दिस इक्वेशन, बट देयर आर सम मोर इक्वेशन, मोर प्रॉपर्टीज, सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस करंट जो इस इक्वेशन में डायरेक्टली विजिबल नहीं है। लेट अस फाइंड आउट दोज कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो। तो सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने कहा इसमें विजिबल फॉर्म में नहीं है, वो भी हम देखिए जानना चाहेंगे। तो इस ग्राफ्स को, इन इक्वेशंस को कहा हमने कि एक वैरिंग नेचर के हैं। मान लीजिए इसमें एक फाई की कोई वैल्यू चूज करें, तो कन्वीनियंटली हमने फाई को 0 चूज कर लिया मान लीजिए, सो दैट आई कैन प्लॉट ए पर्टिकुलर ग्राफ। तो when the phase initial phase is 0, your equations will be like I is equals to I naught sin omega t या E naught cos sin omega t। इनको ग्राफिकली प्लॉट करने से वो ग्राफ्स ऐसे होते हैं, है ना। अगर फाई की वैल्यू ना दी हो तो हम ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते, फाई दिया होना चाहिए हमें कोई ना कोई, तो हम प्लॉट कर सकते हैं। तो वट एवर वैल्यू ऑफ फाई इज टेकन, ग्राफ बन जाएगा आपका कुछ ना कुछ। और हम अब ये जानना चाहते हैं कि ये एक वैरिंग करंट है। तो आपने देखिए घरों में सुना होगा ना कि हमारे घर में जब इलेक्ट्रिक फैंस चल रहे हैं, बल्ब चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब डिवाइसेस चलते हैं, तो वो कहते हैं वो इतनी करंट ले रहा है, फैन 2 एम्पियर करंट ले रहा है, वो मशीन 5-10 आपका एसी जो 10 एम्पियर करंट। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो 10 एम्पियर करंट ले रहा है, ये 2 एम्पियर, वो 0.5 एम्पियर। भाई ये करंट तो वैरिंग है, करंट तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो फिर उसकी फिक्स्ड वैल्यू क्यों बताई जा रही है? ये फिक्स्ड वैल्यू जो बताई जा रही है वो कौन सी करंट है ना, क्योंकि वो डीसी तो है नहीं। अगर ये फैन मैं कहूं 1/2 एम्पियर करंट ले रहा है, तो ये 1/2 एम्पियर क्यों कहा जा रहा है? वो गीजर जो है वो 5 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, तो वो 5 क्यों कह रहे हैं हम लोग? इट शुड बी सेड कि वो 0 to 5 एम्पियर करंट ले रहा है, ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन हम 5 कहते हैं। तो वो शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई एवरेज वैल्यू बता रहे हैं इसकी, क्योंकि ये वैरिंग है। जब हम कहते हैं कि कोई चीज वैरी कर रही है, डिफरेंट वैल्यूज के साथ कोई डेटा चेंज हो रहा है अगर, तो हम कहते हैं उसकी एक एवरेज वैल्यू निकाल लो। तो क्या ये कहीं एवरेज तो नहीं बताया जा रहा है ना? और अगर है तो लेट अस सी कि वो एवरेज निकाला कैसे जाएगा। अगर ये एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन है या
ईएमएफ की इक्वेशन है या करंट की इक्वेशन है, तो इस ऑल्टरनेटिंग करंट का या ईएमएफ का हम एवरेज कैसे बताएं, कितना है एवरेज। सो देखिए मैंने इसलिए इनिशियल फेज अगर 0 लिया तो ग्राफ ऐसा है। तो मैं इसका एक साइकिल सपोज लेता हूं कि ये एक साइकिल करंट एक साइकिल फ्लो हुआ t सेकेंड्स, क्योंकि उसके बाद फिर ऐसे ही फ्लो करेगा, अगले साइकिल में फिर ऐसे ही फ्लो करेगा। तो जो एवरेज एक साइकिल का आएगा वो एवरेज 2 साइकिल का भी वही आएगा, 10 साइकिल का भी एवरेज वही आएगा ना, क्योंकि एवरी साइकिल इज आइडेंटिकल। तो एक साइकिल का एवरेज अगर हम निकाल लें तो वो चाहे आप 10 साइकिल का पूछे, 100 साइकिल्स का पूछे, या हम कहते हैं जो हमारे घर में ऑल्टरनेटिंग करंट है उसका एवरेज वही है फिर। तो एक साइकिल का एवरेज कैसे निकालें, मतलब 0 से t सेकेंड्स तक ये करंट किसी सर्किट में फ्लो हुआ, मतलब ये सोर्स कनेक्ट किया, ये करंट शुरू हुआ 0 सेकेंड पर 0 था, t सेकेंड्स तक ये सर्किट में करंट फ्लो हुआ। तो लेट अस फाइंड आउट कि इस करंट का एवरेज वैल्यू कितना है। तो कैसे करें, करंट क्या डिफाइन करते हैं, करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर t सेकेंड्स का टाइम ले रहा हूं मैं एक साइकिल को, तो t सेकेंड्स में कितना चार्ज फ्लो हुआ, कैपिटल Q जो लिखा है वो है कि इस सर्किट से किसी क्रॉस सेक्शन से t सेकेंड्स में कितना चार्ज क्रॉस हुआ। ओके, इस रेजिस्टेंस के थ्रू t सेकेंड्स में कितना चार्ज क्रॉस हुआ, तो Q डिवाइडेड बाई t। बट क्योंकि ये करंट कांस्टेंट नहीं है तो ये चार्ज Q जो है यूनिफॉर्मली तो गया नहीं होगा। तो मैंने कहा कि लेट अस डिवाइड दिस कैपिटल T इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल्स, डीटीज में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे dt में कितना गया, फिर dt में, हर dt में कुछ चार्ज गया। तो एक छोटे से टाइम dt में कितना चार्ज गया, dq। ओके, dq इज द चार्ज पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इन ए टाइम इंटरवल ऑफ dt। तो ऐसे जितने dt's थे उसको 0 से t के बीच में हम सम अप कर ले, इंटीग्रेट कर ले, मतलब है ना। तो अगर dq चार्ज कितने समय में गया, dt सेकेंड्स में गया, तो एक सेकेंड में कितना गया, dq by dt, है ना। देन दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्टैंटेनियस करंट एट दैट इंस्टेंट। जब आपने वो dt चूज किया, जहां वो dt चूज किया उस dt में कितना चार्ज dq गया, तो dq अपॉन dt इज द इंस्टैंटेनियस करंट। तो मैं dq क्यों क्या लिख दूं, I dt। इफ दिस इज इंस्टैंटेनियस करंट I, देन dq शुड बी रिटन एज I dt। तो उसको हम इंटीग्रेट करें, dq को लिख दिया I dt। बट व्हाट वाज द इंस्टैंटेनियस करंट, ये इंस्टैंटेनियस करंट थी व्हिच इज गिवन बाय I नॉट sin ओमेगा t। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें, तो I को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया I नॉट sin ओमेगा t, dt इंटीग्रेट कर दिया बिटवीन 0 टू t, डिवाइडेड बाय t कर रहे तो एक साइकिल के लिए हो गया, है ना। तो इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं, I नॉट कांस्टेंट था उसको बाहर कर लिया हमने, पीक वैल्यू I नॉट बाई t sin ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाई ओमेगा, sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाई ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा इज ए कांस्टेंट है, उसको बाहर रखा हुआ है। तो इसी एक मॉडिफिकेशन क्या किया हमने, ओमेगा को सब्स्टिट्यूट कर लिया 2 पाई बाई कैपिटल T, ओमेगा वाज 2 पाई बाई t, अभी बताया मैंने। तो नाउ लेट अस पुट द लिमिट्स बिटवीन 0 टू कैपिटल T, इसको सम अप करना है। तो व्हेन आई पुट स्मॉल t एज कैपिटल T, t and t कैंसिल्स आउट, यू गेट cos 2 पाई, माइनस t को 0 पुट करते हैं तो cos 0, तो cos 2 पाई माइनस cos 0। व्हाट इज cos 2 पाई, cos 2 pi is 1, cos 0 is same as cos 2 pi, it is again 1, 1 minus 1 is 0। तो एक साइकिल का एवरेज हमें कितना मिला, 0। बट ये तो थोड़ा मिसलीडिंग आंसर हो गया, तो मतलब मैंने 100 साइकिल्स पास कर दी और आप बोल रहे हैं एवरेज करंट कितना गया, 0, मतलब कोई करंट ही नहीं गया। इसका मतलब करंट स्विच ऑफ करके रखो तो भी एवरेज 0 हुआ। तो ये हमें कोई इंफॉर्मेशन ठीक से दे नहीं रहा। ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज 0 आना तो हमें मिसलीडिंग सा लग रहा है। फिर अब हम क्या बताएं फिर करंट कितनी गई, तो क्या करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें फिर भाई, कैसे पता चले कि हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू है क्या, कितना वो करंट हमारे सर्किट से जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक दूसरा काम किया। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग, क्यों आया देखिए 0, ये पहले दिया डिस्कस कर लिया। 0 आया क्यों, आंसर 0 क्यों आ गया, क्योंकि देखिए इसमें 2 साइकिल्स दिख रही थी, 2 हाफ साइकिल्स दिख रही थी। फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट सर्किट में एक तरफ गया था, मतलब चार्ज एक तरफ फ्लो हुआ था। नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट रिवर्स हो गया था, दैट मींस चार्ज रिवर्स गया था। तो एक हाफ साइकिल में मतलब 0 से t/2 सेकेंड्स में जितना चार्ज इधर गया था, तो t/2 से t सेकेंड्स में उतना ही चार्ज वापस चला आया, तो इसलिए तो नेट चार्ज फ्लो 0 हो गया। तो होना ही चाहिए 0, करंट एवरेज 0 आना ही चाहिए था फिर तो। बट ये फिर हमारे लिए एक मिसलीडिंग सा आंसर हो गया कि इस करंट की वैल्यू नहीं पता चल रही कि इसकी वैल्यू है कितनी। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकाला गया कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट एवरेज फॉर 1 साइकिल, लेट्स फाइंड आउट एवरेज फॉर ओनली हाफ साइकिल। क्योंकि जो हाफ साइकिल ये है उसी के जैसा ये भी है, ओनली डिफरेंस इज कि ये रिवर्स फ्लो करता है।
तो जो इसका एवरेज आएगा इस हाफ साइकिल का, वही एवरेज इसका भी आएगा, है ना। इसका पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव आएगा। हम उसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू मार्क कर लेंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग करंट इज, दैट इज फॉर हाफ साइकिल इज दिस मच। वो चाहे पॉजिटिव के लिए बताया जाए फिर वो नेगेटिव के लिए, वो जब एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, है ना। डेफिनेटली हाफ साइकिल के लिए एवरेज 0 नहीं आएगा। तो सब कुछ फिर से वैसे ही करें हम लोग, एवरीथिंग लाइक दिस। ओनली थिंग कि इस बार जो चार्ज क्यू लेंगे वो t/2 सेकेंड्स का लेंगे, 0 से t/2 सेकेंड्स का लेंगे, और उसको लिमिट्स इंटीग्रेट भी करेंगे हम बिटवीन 0 से t/2। तो लेट्स डू इट। इसको करते हैं फिर से, हाफ साइकिल के लिए करते हैं। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर हाफ साइकिल। देखिए फॉर हाफ साइकिल क्या कर दिया हमने, एवरेज फॉर हाफ साइकिल इज चार्ज गॉन थ्रू दैट सर्किट इन अ टाइम इंटरवल ऑफ t/2 सेकेंड्स। t/2 सेकेंड्स टाइम में कितना गया, तो t/2 है तो वो 2 ऊपर गया तो 2/t हो गया। एंड इंटीग्रेशन इज टू बी डन नाउ बिटवीन 0 to t/2। तो देखिए दो चीजें बदली यहां पर, डिनोमिनेटर भी बदला, लिमिट्स भी बदल गई, राइट ना। यहां पर फिर से वही dq was i dt, तो हमने dq को i dt कर दिया, i was i naught sin omega t। ओके, इंटीग्रेशन भी फिर से वैसा ही है, तो 2 i naught को कांस्टेंट बाहर किया तो 2 i naught by t sin omega t dt का इंटीग्रेशन वही माइनस cos omega t डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब बाहर है 2 i naught अपॉन ओमेगा t, लिमिट्स आर 0 to t/2। ठीक है, तो इट इज माइनस 2 i naught by omega t cos, फिर से वही हमने 2 pi by t कर लिया into t। Now when I put up the limits, small t is put as t/2 here, तो t and t cancels, 2 and 2 cancel also, so you are left with cos pi minus 0 रखा तो cos 0। Now what was cos pi? Cos pi was -1, cos 2 pi is 1 but cos pi is -1, तो -1 minus cos 0 is also 1, तो -1 minus 1 will become -2, तो -2 into -2 will become -4, या 2 into 2 this is 4, and divided by, फिर से देखिए यहां पर ओमेगा को हमने क्या कर लिया, इस ओमेगा को भी हमने 2 pi by t कर लिया into कैपिटल T, तो t and t कैंसिल आउट, एक 2 भी कैंसिल हो गया, तो what I am left with is 2 i naught divided by pi, and if you calculate it 2 divided by pi अगर आप करें, pi is approximately 3.14, if you divide it you may approximately get it is 0.63 times I naught. It means it is 63% of approximately the peak value of current. मतलब अगर ये जो हमने दिखाया था पीक वैल्यू, इसका जो मिड वैल्यू है वो I naught है, I naught by 2 है 0.5, उसका 60%, 63%, थोड़ा सा उससे ज्यादा है ना। दिस वैल्यू इज रफली, ये जो मैंने दिखाया कहीं ये ग्राफ, ये वैल्यू मैंने लिखा 0.63 टाइम्स 63%। पीक वैल्यू का 63%, मतलब 50% से थोड़ा ज्यादा, आधा से थोड़ा ज्यादा। I naught by 2 is not the average, you should understand. I naught by 2 is not the average. I naught by 2 से थोड़ा ज्यादा आया ये एवरेज, है ना, मतलब पीक I naught divided by 2 नहीं आया ये। So that is how you should know कि average value for every half cycle of this alternating current is approximately 63% of the peak value, that is 2 I naught upon pi। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेशन हुआ है समझ में आ रहा है सबको। Similarly, you could have said for EMF also. Similarly, for EMF also you can say for one cycle E average will be 0, है ना, and for half cycle E average will be 2 times E naught upon pi, क्योंकि इक्वेशन तो वही है, इंटीग्रेशन सब करेंगे तो रिजल्ट तो वही आएगा, तो वहां पर जहां I naught है वहां E naught हो जाएगा। That means it is 0.63% of the peak value of EMF. Average value for half cycle of alternating EMF, वो भी इतना ही है। So ये जो हम निकाल रहे हैं ये average for this alternating current. It is not for every other alternating current। जो हम लोगों ने अभी इसके पहले कुछ alternating currents के और ग्राफ्स देखे थे, उनका एवरेज ये नहीं है, माइंड इट। ये एवरेज हम सिर्फ इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके निकाल रहे हैं। हर ऑल्टरनेटिंग करंट के हाफ साइकिल का एवरेज ये नहीं होता। हाँ, मतलब अगर मैं आपको वो ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा वाला दे देता, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट था, है ना, ये पीक वैल्यू I naught थी, इसका मैं अगर एक साइकिल का एवरेज निकालूं, ऐसा एक साइकिल का एवरेज, वो तो 0 आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके हाफ साइकिल का एवरेज, अगर ये I naught है तो हाफ साइकिल का एवरेज इसका 2 I naught अपॉन पाई नहीं कह देना आपको। व्हाट विल बी द एवरेज फॉर दिस हाफ साइकिल? कैन यू सी, हाफ साइकिल तक मतलब t/2, ये t है, ये t/2 है, इसके हाफ साइकिल में करंट वैरी ही नहीं हुआ,
तो इसका मतलब इसका अगर हाफ एवरेज का वैल्यू निकालेंगे तो इट इज सेम एज आई नॉट। तो यू मस्ट नो दैट। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जा सकता है आपसे कि ये ग्राफ बनाकर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसकी हाफ साइकिल का एवरेज क्या है, और आपने पता लगा ये फॉर्मूला लगाकर हाफ एवरेज निकाल दिया उसका, तो रॉन्ग हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है ओनली व्हेन एवरेज निकालने के लिए, व्हेन द अल्टरनेटिंग करंट इज दिस, दैट इज दिस इक्वेशन। बट फॉर एनी अदर अल्टरनेटिंग करंट आपको उसके लिए या तो फंक्शन दिया हो, उसका फंक्शन दिया हो तो हम ऐसे इंटीग्रेट कर लें उसको, नहीं तो जैसे ये नॉर्मल सिंपल फंक्शन था वो कांस्टेंट आपको दिख रहा, तो आप बताइए उसका एवरेज हाफ साइकिल के लिए जितना पीक वैल्यू है उतना ही उसका एवरेज। ओके, बट यू सी हमने एवरेज तो निकाल लिया, बट यू नो यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये फैन स्विच ऑन करने से 0.5 एम्पियर करंट लेता है, वो गीजर 2 एम्पियर करंट लेता है, वो हमारा एसी जो है वो 7 या 10 एम्पियर करंट लेता है, ये जो आप करंट्स की वैल्यूज बता रहे हैं एवरेज वैल्यू, वो ये वाला एवरेज नहीं है। अब ये एवरेज निकाला फिर ये एवरेज नहीं है, वो क्यों ऐसा भाई? फिर वो कौन सा एवरेज है? क्या वो कोई और टाइप का एवरेज है? यस, वो कोई और एवरेज है। वो कैसे निकाला गया? वो है तो कौन सा एवरेज है? लेट अस फाइंड आउट दैट अगेन, दैट एवरेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आल्सो। वो भी एक प्रकार का एवरेज ही है, उसको एवरेज नहीं कहते हम, इट्स कॉल्ड एज एन इफेक्टिव करंट। उस अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को हम कहते हैं इफेक्टिव करंट। तो अब इस अल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू क्या है? हाँ, उस इफेक्टिव वैल्यू को हम एक और नाम देते हैं, समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ये आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हम कैसे निकालते हैं? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। So let us try to understand the meaning of effective value और RMS value of alternating current। ये क्या चीज है, क्यों इसका नाम इफेक्टिव वैल्यू है और फिर इसका नाम RMS भी क्यों रखा गया, ये भी आपको डेरिवेशन के थ्रू समझ में आएगा। तो एज यू कैन सी आई हैव शोन 2 डिफरेंट सर्किट्स। इन दोनों सर्किट्स में कुछ कॉमन चीजें हैं और कुछ डिफरेंसेस भी दिखाई पड़ रही हैं। कॉमन है कि इन दोनों सर्किट्स का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हियर एंड हियर ऑल्सो। यहां पर हमने एक एसी सोर्स कनेक्ट किया है, जबकि यहां पर हमने एक डीसी सोर्स कनेक्ट किया। मतलब इस सर्किट में इस सोर्स को कनेक्ट करने पर जो करंट फ्लो करता है वो कांस्टेंट करंट है, ना वो बढ़ता है ना घटता है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट है। लेकिन इस सर्किट में जो करंट है वो एक वैरिंग करंट है। और ये किस टाइप की करंट है? ये करंट आपकी वही I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइनसॉइडल करंट है। हम एक्चुअली इस करंट की, ये जो टाइम वैरिंग करंट है, इस करंट की एक एवरेज वैल्यू जानना चाह रहे थे, है ना। तो एक साइकिल का एवरेज आपने देखा वो 0 आ रहा था। यहां हम एक नई चीज फाइंड आउट करने जा रहे हैं, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू। सी, अब आप ये जानते हैं, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था कि व्हेनेवर करंट, वेदर इट इज डीसी और एसी, करंट फ्लोज थ्रू एनी रेजिस्टेंस, इट हैज अ हीटिंग इफेक्ट। Resistance causes, current causes heating effect whenever it flows through a resistance. And heat produced by a current through a resistance, क्या था formula? Heat produced when it is passed through a resistance. If current I flows through a resistance of R for a period of time t, the heat energy which is produced is I square R into t. अगर एक कांस्टेंट करंट I रेजिस्टेंस R से t सेकेंड्स के लिए फ्लो करती है तो इतनी हीट प्रोड्यूस होती थी। तो वो हीट यहाँ रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस से ये अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करने से भी फ्लो करते हीट प्रोड्यूस होगा, रेजिस्टेंस R में से कांस्टेंट करंट फ्लो करे तो भी हीट ही प्रोड्यूस होने वाला है। हीट तो दोनों में ही प्रोड्यूस होगा। बट देखिए हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। हम इस अल्टरनेटिंग करंट को मान लीजिए एक साइकिल के लिए या 2 साइकिल के लिए या 10 साइकिल के लिए या 100 साइकिल्स के लिए, मतलब इक्वल नंबर, 100 मतलब कंप्लीट नंबर ऑफ साइकिल्स, क्योंकि इसी हमारे जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो बहुत हाई हैं, 150 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो हम एक साइकिल ले या 10 साइकिल ले, 10 साइकिल में जितनी हीट प्रोड्यूस हुई डिवाइडेड बाई 10 कर दें तो वो एक साइकिल की हीट का वैल्यू आ जाएगा। तो हम इसमें n नंबर ऑफ साइकिल्स भी ले सकते हैं। तो मैंने एक साइकिल लिया सिंपल करने के लिए कि एक साइकिल तक ये अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हुआ, ठीक है, मतलब 0 से कैपिटल T सेकेंड्स तक, T सेकेंड्स तक 0 सेकेंड पर ऑन किया इस अल्टरनेटिंग करंट को, और एक साइकिल तक जब तक वो हुआ करंट फ्लो होने दिया हमने। उस T सेकेंड्स में इस रेजिस्टेंस में इस अल्टरनेटिंग करंट ने कितनी हीट जनरेट की, मान लीजिए समथिंग H जूल्स ऑफ हीट वाज प्रोड्यूस्ड बाय दिस अल्टरनेटिंग करंट, जो कि टाइम वैरिंग था इन ए टाइम इंटरवल ऑफ T सेकेंड्स, दैट इज इन 1 साइकिल। नेचुरली इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो कॉन्स्टेंटली नहीं प्रोड्यूस हो रही होगी। जब करंट पीक पर पहुंची होगी
करंट मैक्सिमम हुई होगी तब ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, जब करंट जीरो हो गई होगी तो उस वक्त हीट प्रोडक्शन जीरो हो गया होगा। मतलब इसमें हीट जो थी वो कॉन्स्टेंटली नहीं प्रोड्यूस हो रही थी, बट हीट इज ए स्केलर क्वांटिटी, चाहे वो कभी ज्यादा हो कभी कम हो, हमें तो टोटल हीट से मतलब था कि कैपिटल टी सेकेंड्स में टोटल हीट जो जनरेट हुई आर रेजिस्टेंस में इस करंट से वो एच हीट हुई। नाउ व्हाट आई विश इज कि इस रेजिस्टेंस में से जब ये कांस्टेंट करंट हम भेजें उतने ही देर के लिए, जितनी देर के लिए हमने इसको भेजा था, इसके एक साइकिल के लिए भेजा था, जितना भी इसका एक साइकिल का टाइम है उतनी ही देर के लिए ये करंट भी इसके अंदर से भेजी जाए, ऑल्टरनेटिंग करंट की जगह ये डीसी भेजी जाए। एंड वी विश कि ये डीसी की वैल्यू कुछ ऐसी एडजस्ट की जाए, इतनी एडजस्ट की जाए कि इस रेजिस्टेंस से वो कॉन्स्टेंटली फ्लो करके, कॉन्स्टेंटली हीट प्रोड्यूस करके उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे जितनी की इस ऑल्टरनेटिंग करंट ने प्रोड्यूस की। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस हैं? सेम रेजिस्टेंस, सेम टाइम इंटरवल तक हम करंट को दोनों करंट्स को भेजें, एंड दोनों करंट्स से सेम अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस हो। तो वो कौन सी कांस्टेंट करंट हमें भेजनी चाहिए, कितनी वैल्यू होनी चाहिए उस कांस्टेंट करंट की डीसी की जो उतनी ही हीट प्रोड्यूस कर सके, तो वो वैल्यू इस ऑल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू कहलाएगी कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट का इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट। तो हम थ्रू हीटिंग इफेक्ट क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, तो देखिए डिफाइन किया हमने, अब सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा जब ये डेफिनेशन ऐसे समझ में आ रही। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट? इस ऑल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू किसको कह रहे हैं? इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिफॉर्म डीसी, एक कांस्टेंट डीसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। कौन सी डीसी? विच प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन पास थ्रू अ रेजिस्टेंस, जब ये डीसी रेजिस्टेंस से जाता है वो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करता है व्हेन पास थ्रू अ रेजिस्टेंस एज प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन एसी, जितना कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट से प्रोड्यूस होने वाला है, व्हेन इट इज पास थ्रू द सेम रेजिस्टेंस फॉर सेम इंटरवल ऑफ टाइम। जितनी देर के लिए इस ऑल्टरनेटिंग करंट को भेजा जाए उतनी ही देर तक ये डीसी को भेजा जाए, जिस रेजिस्टेंस से इस ऑल्टरनेटिंग करंट को भेजा जाए उसी रेजिस्टेंस से इस डीसी को भी भेजा जाए। जितनी हीट ये प्रोड्यूस करे उतनी ही हीट यहां पर भी प्रोड्यूस हो, तो जितनी डीसी आपने भेजी वो डीसी की वैल्यू उस ऑल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू है। आई थिंक ये डेफिनेशन तो सबको समझ में आनी चाहिए। वी विश कि एच डीसी शुड बी इक्वल्स टू एच एसी विद द कंडीशन सेम इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू सेम रेजिस्टेंस। ओके, तो देखिए डीसी का हीट प्रोड्यूस कितना हुआ वो कैलकुलेट करना तो सिंपल है कि अगर वो डीसी आई डीसी है तो हीट प्रोड्यूस बाय आई डीसी इज आई डीसी स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, कैपिटल टी मतलब एक साइकिल। एक साइकिल के लिए अगर मैंने कंसिडर किया, अब एन साइकिल्स के लिए करोगे तो एन इंटू टी कर देंगे, तो उसको भी एन टाइम्स करना पड़ेगा, एन और एन कैंसिल हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता उससे, हम एक साइकिल के लिए कर रहे हैं। तो फॉर वन साइकिल जो टाइम इसका है उतनी देर के लिए अगर डीसी को पास किया गया तो रेजिस्टेंस आर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? आई स्क्वायर आर डी टी। लेकिन डीसी एसी का हीट प्रोड्यूस कैसे निकालें, क्योंकि वो तो करंट ही नहीं कांस्टेंट है, तो उस करंट की कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो हमें उस टाइम इंटरवल को जो 0 से कैपिटल टी सेकंड्स का टाइम इंटरवल है, हमने उसके छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स को डिवाइड करके छोटे इंटरवल्स बना दी। तो एक छोटा टाइम इंटरवल dt है, ये छोटा टाइम इंटरवल dt कहां चूज किया गया? उस एसी में, उस एसी में हमने वो dt कहीं भी चूज किया हो, यहां dt चूज कर लिया हो, यहां dt चूज, इस छोटे से टाइम dt में करंट की कोई वैल्यू रही होगी, है ना? तो उस वक्त जो करंट था उस रेजिस्टेंस R से गया तो dt सेकेंड्स में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई? तो ये इंस्टेंटेनियस करंट, ये जो बदल रहा है, ठीक है, ये करंट कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंस्टेंट, वो इंस्टेंट जिस वक्त आपने वो dt चूज किया है उस इंस्टेंट पे करंट आई था, तो उस छोटे से टाइम इंटरवल dt में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई? आई स्क्वायर आर dt। तो एक पूरे साइकिल में कितनी हुई? ऐसे छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उन सबको सम कर लिया जाए। एंड यू नो हीट इज ए स्केलर क्वांटिटी अगेन, तो उसको हमें कोई वेक्टर एडिशन तो करना नहीं, तो 0 से कैपिटल टी के बीच में हम सारे छोटे टाइम इंटरवल्स की हीट को ऐड कर लें, तो बिटवीन 0 टू t आई स्क्वायर आर dt को ऐड कर लें। तो दिस इज हीट प्रोड्यूस बाय ऑल्टरनेटिंग करंट इन टाइम t, दिस इज हीट प्रोड्यूस बाय दैट डीसी इन टाइम t व्हेन पास थ्रू द सेम रेजिस्टेंस। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों इक्वल हो, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो जो वैल्यू ऑफ डीसी है दैट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव वैल्यू, उसी का नाम इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगा। सो हम विश कर रहे हैं कि दोनों इक्वल है, तो इक्वेट कर देते हैं, तो आई डीसी स्क्वायर आर डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी, आई की वैल्यू हमने पुट कर दी जो थी आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। ठीक है, तो आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसको बाहर किया, आर एक कॉन्स्टेंट है उसको भी बाहर किया इंटीग्रेशन से,
तो इंटीग्रेशन में क्या रह गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। तो यहां से r कैंसिल हो जाता है इससे, तो यहां आपके पास बचता है आई डी सी स्क्वायर इंटू टी विच इज इक्वल टू व्हाट, आई नॉट स्क्वायर, r कैंसिल करने के बाद, है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ओके, अब ना आपके पास एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा। देखिए cos 2 थीटा आपने पढ़ा है, इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन का। तो यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा अलग करूं तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैंने कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस cos 2 थीटा, मतलब 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले को, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहां तक स्टेप समझ में आ रहा है। तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 को एज इट इज छोड़ दीजिए, इसको इंटीग्रेट करते हैं। 1 dt का इंटीग्रेशन t, cos 2 ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा टी माइनस साइन एज इट इज, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा। तो cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, बिटवीन 0 टू कैपिटल T लिमिट्स है। तो लिमिट्स कैसे अप्लाई करनी है, देखिए इसके ऊपर अलग अप्लाई कर दीजिए, इसके ऊपर अलग। तो इस पर किया मतलब t पर 0 टू t अलग अप्लाई कर दें, माइनस ये 1/2 ओमेगा को बाहर रखकर sin 2 ओमेगा टी, उस पर भी 0 टू t अप्लाई करना है। मैंने 2 ओमेगा टी में क्या कर दिया, ओमेगा वॉज 2 पाई बाई टी, ये ओमेगा था। तो अगर मैं ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी रख दूं तो इट बिकम्स 4 पाई बाई टी डिवाइडेड इनटू टी, 0 टू टी। तो लेट्स अप्लाई द लिमिट्स, देखिए क्या आता है रिजल्ट। So this is how we have applied the limits. So here on the left hand side it is same as I dc square into d into t, वही as it is है, I naught square by 2 वो भी ऐसे ही है। पहले इस पर अप्लाई कर देते हैं लिमिट्स, तो अपर लिमिट माइनस लोअर में लिमिट, तो इट इज t माइनस 0 माइनस 1/2 ओमेगा एज इट इज, इस पर अप्लाई करते हैं। स्मॉल t को पहले कैपिटल T रखो तो क्या हो जाएगा, t and t कैंसल्स, साइन 4 पाई माइनस लोअर लिमिट 0 तो साइन 0। व्हाट इज साइन 4 पाई, साइन 0, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, इसी ये सारे एंगल्स वही हैं। तो साइन 4 पाई इज सेम है साइन 0 मीन 0, एंड साइन 0 तो 0 होता ही है। तो इट इज 0 माइनस 0, ये 0 हो जाता है, एंड 0 इंटू एनीथिंग शुड बी 0। ठीक है, वेयरएज हियर इट इज t माइनस 0 मीन्स t। तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया, ये बच गया t। तो क्या बचा आपके पास, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी माइनस 0, हटा दिया हमने। तो ये t and t also cancel out. So I am left with I dc square is equals to I naught square by 2. So what is I dc? I dc should be therefore I naught square by root 2, or this is known as actually the effective value, या इसी को हमने RMS value कह दिया, है ना। अब अगर ये इफेक्टिव वैल्यू या RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट था, तो सिमिलरली इफेक्टिव वैल्यू और ऑल्टरनेटिंग RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF, जिसकी इक्वेशन तो फिर वही E is equals to E naught sin omega t है, that will be E naught upon root 2। ठीक है, now why did you call it as RMS value? Now you can understand। देखिए जरा इक्वेशन को अगर आप देखें, हमने R और R, अब मतलब वो मैथमेटिकली उसका नाम RMS वैल्यू रख दिया गया है। R और R तो कैंसिल आउट हो गए। अब एज इफ आप क्या कर रहे हो, देखो I dc स्क्वायर इंटू टी, मतलब आपने किसको एवरेज किया, जैसे आपने वहां पर I dt को इंटीग्रेट किया था, यहां पर I स्क्वायर dt को इंटीग्रेट कर रहे हैं, I स्क्वायर dt, मतलब आप एक साइकिल जो अल्टरनेटिंग करंट का एक साइकिल था, ये एक साइकिल जो था, इसमें हर एक इंस्टेंट की जो करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट, आपने पहले एज इफ उस करंट का स्क्वायर कर लिया, है ना, एक साइकिल के लिए। मतलब एक साइकिल के लिए करंट की, इंस्टेंटेनियस करंट्स के स्क्वायर्स को हमने ऐड किया, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट्स, एंड देन डिवाइडेड बाई कैपिटल T करके, यहां से देखिए ये T डिवाइड कर दिया, पर डिवाइडेड T कैंसिल आउट किया ना, तो डिवाइडेड बाई T कर दिया। मतलब एज इफ यू आर अगेन कैलकुलेटिंग एवरेज, एंड फाइनली आपने क्या किया, जब डिवाइडेड बाई T कर दिया, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट कर दिया। तो आपने क्या किया, एक्चुअली यू हैव डन द स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन, द एवरेज ऑफ किसका, द स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट्स। मतलब आपने स्क्वायर करके मीन निकाला और फिर उसका अंडर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। ऐसा करने से एडवांटेज क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए आपने जब एक साइकिल का एवरेज निकाला तो वो 0 आ गया था, एंड द रीजन बिहाइंड वाज कि एक साइकिल पॉजिटिव था, एक साइकिल हाफ साइकिल नेगेटिव था। तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइकिल्स का जो सम आ रहा था आपके ऑल्टरनेटिंग करंट्स का एवरेज में, वो 0 आ रहा था। इसलिए हमने पहले स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने से क्या हुआ, जो पॉजिटिव्स थे वो तो पॉजिटिव है ही, लेकिन नेगेटिव्स का स्क्वायर करने से वो भी पॉजिटिव हो गए। ठीक है, तो इसलिए अब एक साइकिल के एवरेज की वैल्यू 0 नहीं आ रही।
बट क्योंकि हमने यहां पर हीटिंग का एस्पेक्ट लिया था, हीटिंग ऑफ दिस करंट का इफेक्ट लेकर किया था, इस करंट को हम इफेक्टिव करंट कह देते हैं. सो दिस करंट इज जनरली टेकन एज will be taken into consideration while we discuss about what is the current consumption in alternating current circuits. तो हम जनरली वो हाफ साइकिल का जो एवरेज है वो कैलकुलेशन पर्पज के लिए सिर्फ कर लिया, लेकिन जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, हम सर्किट स्टडी करेंगे, तो जब भी हम करंट्स की बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में, तो या तो इंस्टेंटेनियस करंट्स की बात चलेगी, या फिर अगर एवरेजेस देंगे तो हम उसमें आरएमएस वैल्यूज या इफेक्टिव वैल्यूज लेंगे, इफेक्टिव वैल्यूज ऑफ ईएमएफ एंड इफेक्टिव वैल्यूज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट्स. तो वो आया आपके पास I0/√2. अगर मैं इसको √2 को कन्वर्ट करूं तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.70%. ये 0.70 ऑफ I0 मींस इट इज 70% ऑफ I0. वो देखिए, वो एवरेज आपका मिला था 63%. ये उससे थोड़ा ज्यादा है. मतलब उस ऑल्टरनेटिंग करंट का जो करंट में अगर जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया था, अगर हम उस ग्राफ में देखें, ऐसा ग्राफ अगर मैंने प्लॉट किया था, ये पीक था I0, तो ये मिड वैल्यू थी I0/2 अगर था, ये I0 था, तो ये 70% बीच में कहीं यहां आ रहा है. 3/4 तो नहीं है, 75% नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है. तो 70% ऑफ द पीक करंट इज अप्रोक्सीमेटली द इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग करंट. और ये अगेन मैं क्वेश्चन कर दूं कि I0/√2 इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, whose इक्वेशन इज दिस इक्वेशन, नॉट दैट कि हर ऑल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू यही होती है ना. मैंने अभी आपको जो एक डिजिटल करंट दिखाया था ऐसा, ये जो एक करंट ऑल्टरनेटिंग करंट दिखाया था, इसका अगर आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट? इट इज नॉट I0/√2. इट्स आरएमएस वैल्यू, इट्स एवरेज फॉर हाफ साइकिल, है ना. उसके एक साइकिल का एवरेज 0 था, हाफ साइकिल का एवरेज I0 था, और आरएमएस करेंगे दैट इज ऑल्सो I0. उसका आरएमएस वैल्यू भी I0 ही है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट करंट है ना, ऐसे इधर भी कांस्टेंट, तो चाहे यहां का ले या यहां का ले, सभी करंट्स कांस्टेंट है, तो उसका आरएमएस वैल्यू I0/√2 ही कर देना. तो रिमेंबर दैट I0/√2 इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओनली फॉर साइनोसॉइडल करंट्स. ठीक है. So this is all about the different characteristics of alternating current we are going to take up in this chapter. So the next topic we'll take up is the different types of alternating current circuits. Okay, that will be our next topic.